Hello guys, my name is Yatan and welcome back to my channel. Today the topic of discussion is abortion. So let's start our discussion with the definition of abortion. Abortion is generally the bleeding that occurs before the gestational age of 24 weeks. And if we talk about the bookish definition of the abortion, that is the pregnancy that ends before the 20 weeks of gestation. So there are many etiological factors that is responsible for abortion. So let's discuss one by one. In this, the first one is the chromosomal abnormality. As you all know, there are a lot of disorders that can cause abortion. So it is responsible for 60 to 80% of abortion. This is the main reason. Okay, the other one is the anatomical abnormalities of female reproductive tract. Like for example, if we talk about, that is bicornuate uterus, okay, septate uterus. So these are some anatomical abnormalities that is due to the Mullerian agenesis. Okay, so because of that, you are going to see these anatomical abnormalities that can cause early abortion or early loss of the pregnancy. The third one is infection. Obviously all of you know the infection is very one of the most highest risk factor for the abortion. मेनली कौन सी इन्फेक्शन जो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड है, मेनली STDs कॉजेज द अबॉर्शन. सो उसमें अगर हम एग्जांपल्स देखें तो क्लमीडिया इन्फेक्शन कैन कॉज अबॉर्शन, क्लमीडिया, and other infection like rubella can cause other, like there are a lot of infection that are responsible for abortion. Okay, so these are some examples. Then immunological factors. Obviously I hope you all heard about the APLA syndrome, that is the anti-phospholipid antibody syndrome. Okay, in this syndrome there is the antibodies are produced against the membrane. So example is APLA syndrome. We will discuss about it in the next coming videos. Malnutrition can cause endocrinological factors, like for example, if the female is having the hyperthyroidism, that can also cause abortion. Okay, and other are trauma. If like a female have the recent accident or something, then abortion can occur. Okay, so like a female comes to you in the clinic. Now how that female is going to represent? Okay, so we will discuss about it. Now a female comes to you, doctor, I am having a pain and also I am having the bleeding, so and she is pregnant too. So you will think like something went wrong, so you will prescribe some tests for that. Okay, so presentation will be crampy abdominal pain with bleeding, and the patient condition can be stable or unstable. By this I means like patient is having so much blood loss that her condition is not stable. So first it depends upon the amount of blood the female has lost. Okay, and ये जो क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन है, इट इज़ नॉट मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको जो भी फीमेल पेशेंट आए जिसका अबॉर्शन हुआ हो, ये एक पर्टिकुलर सिम्टम नहीं है, बट इट कैन बी देयर, बट ऑब्लिगेटरी नहीं है ये चीज़. ओके, so these are some presentation how a female is going to represent. Now we will proceed with the diagnosis of the how we are going to diagnose this condition. For diagnosis, first we will go for the CBC.
why we are going to do CBC? Because if a female comes to you and like she is having bleeding, then there will be a lot of blood loss. So by doing CBC, we will came to know what is the hemoglobin level and how much blood is lost in this female patient. So like हमें इसको blood देने की ज़रूरत है, if there is any need to transfuse or not, we can do by that test. ओके सो अगर डायग्नोसिस में सबसे बेसिक टेस्ट अगर मैं लिखूंगी तो दैट इज व्हाट CBC you are going to do. Other test you are going to do is blood test and RH compatibility. Okay, why I am telling you, like if the female first is blood type and RH compatibility. Now why we are going to do RH compatibility? Like for example, अगर female RH negative हुई और baby RH positive हुआ तो that because of that abortion can be there. Okay, so हम RH compatibility test करेंगे ताकि हम उस female को if they are rhesus incompatible तो we will give anti-RH anti-D RH antibodies. Okay, so we will go for blood type and RH compatibility. The third thing we are going to do is ultrasound. Ultrasound is very important in gynecology. Just remember this, okay? Without ultrasound, there is like no disease in the gynecology that like आप उसका diagnose नहीं कर सकते. So ultrasound is very important for diagnosis. So ultrasound में आप देखोगे कि मतलब क्या है अंदर बच्चे की पोजीशन क्या है उसका, इफ़ देयर इज़ अ पल्सेशन और नॉट, इफ़ नॉट देन मतलब उसका अबॉर्शन हो चुका है, अगर है तो भी हो सकता है, इट इज़ मे बी इट इज़ थ्रेटन्ड वन. सो अल्ट्रासाउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डायग्नोसिस. आफ्टर दैट यू विल गो फॉर डिजिटल एग्ज़ाम. In digital exam you will check whether the cervical os is open or closed. ओके सो डिजिटल एग्ज़ाम में हम सर्विकल ऑस की देखते हैं कि वो ओपन है कि नहीं. सो दीज आर सम डायग्नोस्टिक टेस्ट वी यूज़ फॉर अबॉर्शन. नाउ what are the types of abortion? There are like several types of abortion. We will discuss one by one. Okay, so let's discuss about them. The first type is a threatened abortion. Threatened abortion. Now, what is meaning of threatened abortion? अगर हम simple इसकी definition की बात करें, so it is uninterrupted pregnancy. Means in this case pregnancy will be there, obviously there will, but the female comes to you, doctor, like I am having bleeding and pain from like past one day. Obviously एक दिन का ही वेट करेंगे, वो ज़्यादा दिन अगर होगी तो obviously they will rush to you. तो वो बोलेगी कल डॉक्टर मेरे को जैसे ब्लीड हुआ एंड देयर इज़ अ पेन ऑल्सो. तो यू विल थिंक ओके मैम हम अल्ट्रासाउंड करके एक बार चेक कर लेते हैं व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ द बेबी. सो इसमें what is the definition? That is uninterrupted pregnancy. Uninterrupted pregnancy. Uninterrupted is very important word here. Okay, so clinical presentation की बात करें अगर हम, so there will be pain. Obviously here pain is there. ओके, पेन इज़ प्रेजेंट. ब्लीडिंग हमने बोला था कि अबॉर्शन का दीज आर सम क्लिनिकल फीचर्स ऑफ अबॉर्शन. तो ब्लीडिंग भी है इस फीमेल को, पेन भी है और ब्लीडिंग भी है. ठीक है, अगर आप उसकी जर्नल एग्जामिनेशन करोगे, मतलब जर्नल वाइटल्स वगैरह सब देखोगे तो वो आपको नॉर्मल दिखेंगे. एवरीथिंग जर्नल कंडीशन ऑफ दिस फीमेल विल बी व्हाट, विल बी नॉर्मल. नाउ
अगर हम इसकी अब जनरल कंडीशन देख लिए, अब हम अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड में हम क्या देखते हैं, यूट्रस का साइज। अब हम जब यूट्रस का साइज देखेंगे, यूट्रस साइज दैट विल बी इक्वल टू द पीरियड ऑफ एमेनोर्रहिया, ओके, दैट विल बी इक्वल टू पीरियड ऑफ एमेनोर्रहिया। नाउ अब जनरल एग्जामिनेशन देख ली हमने, यूट्रस का साइज़ भी देख लिया, मैंने आपको डिजिटल एग्जामिनेशन भी बोली थी हम करेंगे। तो डिजिटल एग्जामिनेशन में हम क्या देख रहे थे, सर्विकल डायलेशन, सर्विकल ऑस क्या है। अब इस केस में क्या होगा, सर्विकल ऑस विल बी क्लोज्ड, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे क्लोज होगा। इस पेशेंट की प्रेगनेंसी को थ्रेट है बट अभी तक वो मतलब ख़त्म नहीं हुई है। सो देयर द सर्विकल ऑस विल बी क्लोज सो दैट नथिंग विल बी पास्ड आउट, ओके। सो दीज आर सम क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ दिस पेशेंट एंड देन for this is a clinical presentation, then we will go for diagnosis. As I told you, we will go for ultrasound, and ultrasound में आप क्या देखोगे, there will be positive pulsation. Positive pulsation means the fetal heart will be, आपको उसकी heartbeat will be normal, okay. So there will be what, positive pulsation. एंड देन गाइज वी विल गो फॉर द ट्रीटमेंट। अब इस फीमेल को ट्रीट तो करेंगे ना, अगर आपके पास आई है पेशेंट, तो हम इसको बोलेंगे कि मैम आप थोड़े दिन के लिए रेस्ट पे रहो, बेड रेस्ट पे। हम देखेंगे कि बेड रेस्ट के साथ अगर इसकी कंडीशन इम्प्रूव हुई तो हम इसको होल प्रेगनेंसी बोलेंगे, ज़्यादा हैवी काम नहीं करना, ज़्यादा टाइम खड़े नहीं होना। तो वी विल टेल हर टू टेक व्हाट, बेड रेस्ट। सो ट्रीटमेंट में जस्ट वी विल प्रिस्क्राइब हिम व्हाट, bed rest. So this about the threatened abortion. First इसमें हम एक quick review करेंगे. This is an uninterrupted pregnancy. In this case the patient is having pain plus bleeding will be present and all the general signs and all the general condition of the patient will be normal, and the uterus size is equal to the period of amenorrhea, and if we check the cervical os that is closed, okay. And diagnosis में you will see you will go for ultrasound examination, and treatment में we will prescribe her bed rest. And then other category, second type of the abortion is the missed abortion. Second is missed abortion. Now इस मिस्ड अबॉर्शन का मतलब क्या है, अगर डेफिनेशन की बात करें, यहाँ द फीटस विल बी डेड. दिस इज व्हाट, दिस इज डेड प्रेगनेंसी, ओके, दिस इज डेड प्रेगनेंसी. सो इसमें हाउ द पेशेंट इज गोइंग टू प्रेजेंट, शी विल कम क्लिनिकल फीचर में, प्रेजेंटेशन में, पेन और ब्लीडिंग. नाउ इस पेशेंट को मतलब कैसे पता लगेगा कि इसका बेबी नहीं रहा. ऑब्वियसली ब्लीडिंग इस केस में होगी, देयर विल बी ब्लीडिंग, बट हियर नो पेन इज देयर. पेन नहीं होगी, इसको पेन नहीं होगी. अगर पेन होती तो ऑब्वियसली लाइक ये बेबी डेड है तो पेन कैसे हो सकती है. पेन विल नॉट बी देयर, ओनली द ब्लीडिंग विल बी देयर, ओके. एंड इफ यू चेक the general condition of the patient, general condition that is normal, nothing is changed, okay, this is normal. And cervical os के बारे में अगर बात करें, इस केस में cervical os will be क्लोज्ड होगा. इसमें अभी तक उसका कोई लाइक प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इज स्टिल इनसाइड द वॉर्म, सो द सर्विकल ऑस इज क्लोज्ड. एंड अगर डायग्नोसिस की बात करें तो ऑब्वियसली हम अल्ट्रासाउंड करेंगे, तो अल्ट्रासाउंड में क्या होगा, ऑब्वियसली बेबी इज डेड, सो देयर विल बी नो पल्सेशन. सो दैट इज ऑन डायग्नोसिस, देयर विल बी नेगेटिव पल्सेशन. And for treatment, what you are going to do? The baby is dead, nothing will, you can't do anything. So in that case we will go for dilation and curettage, okay, we will go for
DNC, dilation and curettage. Or you can prescribe her a medical treatment, that is you will prescribe the combination of the misoprostol and mifepristone, but most commonly हम ये देते हैं, और मेडिकल ट्रीटमेंट भी आप कर सकते हो. सो मिस्ड अबॉर्शन में क्या हमने सीखा, दैट इज़ डेड फीटस, डेड प्रेगनेंसी. पेन नहीं है इस पेशेंट में, जस्ट रिमेंबर पेन नहीं है यहाँ पे. ब्लीडिंग विल बी देयर एंड जर्नल कंडीशन विल बी नॉर्मल, और सर्विकल ऑस जो होगा इसमें क्लोज्ड होगा. एंड जब हम डायग्नोसिस करेंगे नेगेटिव पल्सेशन विल बी देयर एंड ट्रीटमेंट में डायलेशन एंड करेटेज. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डू द थर्ड टाइप ऑफ अबॉर्शन. Discuss about that is inevitable abortion. Now inevitable का meaning क्या है, इस what is the definition of this term, that is it is a interrupted pregnancy. Now don't confuse this inevitable with the threatened one, that is uninterrupted, and this one is interrupted pregnancy. इंटरप्टेड प्रेगनेंसी. इसमें क्या होगा क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में, अगर हम जनरली पेन और ब्लीडिंग की बात करें तो इंटरप्टेड का मतलब क्या है, इसमें जो प्रेगनेंसी है दैट इज़ लाइक मतलब खतरे में है, और यू कैन से वो मतलब कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुकी है. ठीक है, सो यहाँ पे बहुत सीवियर पेन से आएगी फीमेल पेशेंट. लाइक कोई भी फीमेल पेशेंट विद अ इनएविटेबल प्रेगनेंसी, शी विल हैविंग लाइक लॉट ऑफ ब्लीडिंग प्लस पेन. ओके, सो पेन यहाँ पे क्या होगी, बहुत 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 ज़्यादा पेन होगी, और ब्लीडिंग इट इज़ ऑल्सो वेरी लाइक ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी, तो इट इज़ अ वेरी सीवियर कंडीशन, सीवियर ब्लीडिंग. ओके, नाउ अगर हम जनरल कंडीशन की बात करें अब पेशेंट की, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, इतनी ब्लीडिंग हो रही है, इतनी पेन हो रही है, आपको लगेगा कि ये पेशेंट स्टेबल है? नहीं, ये पेशेंट की जनरल कंडीशन बहुत वर्स्ट होगी. मे बी दिस पेशेंट इज़ हैविंग शॉक, सो शॉक विल बी देयर इन दिस केस. ऑब्वियसली इतना ब्लीड अगर हो चुका है तो पेशेंट शॉक में जाएगा ही. ठीक है, और अब अगर हम यूट्राइन साइज़ की बात करें, यूट्रस का साइज़ अगर हम देखें, इस केस में जो यूट्रस का साइज़ होगा दैट विल बी, एज इट इज़ इनएविटेबल, सो इट विल बी लेस देन द नॉर्मल वन. ओके, एंड अब अगर यूट्राइन साइज़ हो गया हमारा, अब सर्विकल ऑस इस कंडीशन में क्या होगा, आप लोग सोचो क्या हो सकता है, वेदर इट इज़ ओपन और क्लोज, बिकॉज ये हमने बोला कि खतरे में है ये प्रेगनेंसी. सो और ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा है. सो दिस कंडीशन, इन दिस कंडीशन सर्विकल ऑस इज ओपन. इसमें क्या है, सर्विकल ऑस ओपन होगा. ठीक है, नाउ अब डायग्नोसिस में अगेन हम क्या कर रहे थे, वी आर डूइंग व्हाट. अब डायग्नोसिस में हम अल्ट्रासाउंड करेंगे तो हमें क्या दिखेगा इस अल्ट्रासाउंड में, वी विल सी देयर इज़ अ रेमिनेंट, समथिंग इज़ लेफ्ट इनसाइड इट. ओके, सो यू विल सी रेमिनेंट्स. लाइक हमने बोला कि इसमें ओपन है, दिस इज़ इनएविटेबल अबॉर्शन, सो इसमें क्या होगा, नॉट रेमिनेंट यू आर गोइंग टू सी, बट देयर इज़ नेगेटिव पल्सेशन. नेगेटिव पल्सेशन विल बी देयर. रेमिनेंट इसमें नहीं देखेंगे हम. जब आप देखोगे अल्ट्रासाउंड करेंगे, अभी ये जो बेबी है थोड़ा निकलना बाहर शुरू, मतलब ज़्यादा नहीं अभी कुछ भी हुआ, बट सम मोस्ट ऑफ द कंसेप्शन प्रोडक्ट इज़ इनसाइड द यूट्रस, ओनली सम आर लाइक आउटसाइड the uterus. So in this case you are going to see negative pulsation. Okay, so treatment, what you are going to prescribe, obviously we will go for dilation and curettage in this case. Okay,
So inevitable abortion is interrupted, and it is interrupted pregnancy. In this, pain is very severe, bleeding is very severe, so the general condition of patient is very worse, means the patient is under the shock, and uterus size is less, and cervical will be open. So diagnosis में negative pulsation, dilation and curettage you will do. Now the third type of abortion is the incomplete abortion. This is the fourth type of abortion. Okay, so the fourth type is incomplete abortion. So incomplete से what you think incomplete का मतलब क्या है? Incomplete means the some product of conception is still inside the uterus, means maximum like out of 100 the 60% is out, whereas like 30 or 40% is inside the uterus. So here some conception, some product of conception is still in the uterus. Conception is present in uterus, or you can say it is a partial abortion. Okay, in simple terms. So अगर हम इसमें पेन की बात करें या ब्लीडिंग की बात करें, तो what you are suspecting in this case? In this case, the bleeding will be like very moderate bleeding, and the pain is also very moderate. इतना नहीं होगा. Okay, so pain is moderate, ब्लीडिंग इज़ ऑल्सो मॉडरेट. अगर हम इसकी जनरल कंडीशन की अगर बात करें, सो जनरल कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो क्या देखने को हमें मिल सकता है? मे बी ये पेशेंट मे बी शी इज़ अंडर द शॉक और नॉट. सो मे बी अंडर शॉक, बट आप श्योर नहीं हो. शॉक प्लस माइनस है, बस याद रखना. किसी में हो भी सकता और किसी में नहीं भी हो सकता. ओके, और अगर हम यूट्रस का साइज़ देखें तो इसमें यूट्रस का साइज़ लेस होगा नॉर्मल प्रेगनेंसी से. ऑब्वियसली प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन काफ़ी हद तक बाहर निकल चुका है, तो इसमें लेस होगा. ओके, नाउ अगर हम सर्विकल ऑस की बात करें, सर्विकल ऑस इन दिस केस हमने क्या कहा? कुछ प्रोडक्ट निकल मैक्सिमम 60 और 60 to 70% निकल चुका है, बस कुछ अंदर है. तो मतलब क्या हुआ? सर्विकल ऑस क्या होगा? ओपन होगा. इन दिस केस सर्विकल ऑस इज ओपन. ओके, नाउ डायग्नोसिस में आप क्या देखोगे? अब अल्ट्रासाउंड की आपने कहा कि 60% तो निकल चुका है, तो अल्ट्रासाउंड में कुछ रेमिनेंट्स बचेंगे. So on diagnosis, on ultrasound you are going to see some remnants of conceptions. ये याद रखना, कुछ remnants of conception you will see inside the uterus. Okay, so अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो obviously we will go for what? Dilation and curettage. मैक्सिमम डायलेशन एंड curettage ही करते हैं हम अबॉर्शन के केस में. सो इनकम्प्लीट के बारे में जल्दी क्विक रिव्यू लेंगे. इट इज़ अ लाइक पार्शियल अबॉर्शन, यू कैन से. पेन विल बी मॉडरेट, ब्लीडिंग विल ऑल्सो बी मॉडरेट, एंड जनरल कंडीशन प्लस माइनस शॉक कैन बी प्रेजेंट और कैन नॉट बी. सो यूट्राइन साइज विल बी लेस देन द नॉर्मल प्रेगनेंसी एंड द सर्विकल ऑस विल बी ओपन. ओके, एंड अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो सम रेमिनेंट्स ऑफ द कंसेप्शन विल बी देयर इन द यूट्रस, एंड ट्रीटमेंट इज डायलेशन एंड curettage. Next type of abortion is complete abortion. Okay, so complete abortion, complete के नाम से पता लग रहा है कि all the product of conception will be thrown out. Okay, so all the product of conception is out. ओके, नाउ अगर हम क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें इस पेशेंट की, तो क्या क्या दिखेगा क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में? अगर हम बात करें पेन या फिर ब्लीडिंग की, तो हमने कहा कि सारा अब सब कुछ तो निकल चुका है यूट्रस से, तो क्या लेफ्ट हुआ? पेन होगी उसमें? ऑब्वियसली नो पेन विल बी देयर. सो पेन विल बी एब्सेंट, क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी निकल चुका है. तो ऑब्वियसली ब्लीडिंग भी नहीं होगी. सो ब्लीडिंग विल बी एब्सेंट, इसमें ब्लीडिंग भी एब्सेंट होगी.
तो अगर हम जनरल कंडीशन देखेंगे पेशेंट की, जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट, व्हाट यू आर गोइंग टू सी इन दिस केस, द जनरल कंडीशन ऑफ पेशेंट विल बी नॉर्मल, बिकॉज यहाँ पे कोई पेन नहीं है, कोई ब्लीडिंग नहीं है. सो व्हाट यू आर गोइंग टू सी, इट इज़ नॉर्मल. एंड द यूट्रस साइज, जब हम यूट्रस का साइज देखेंगे अल्ट्रासाउंड पे, तो क्या होगा, वो ऑल्सो वो भी क्या होगा, नॉर्मल होगा, क्योंकि कुछ भी नहीं है. तो सर्विकल ऑस की बात करें, अब आप सोचो कि जब सब कुछ निकल चुका है तो सर्विकल ऑस क्यों खुला क्यों रहेगा, ऑब्वियसली वो बंद होगा. तो क्या होगा, वो क्लोज्ड. सर्विकल ऑस इज क्लोज्ड इन दिस केस. ओके. नाउ डायग्नोसिस की अगर हम बात करें, जब हम अल्ट्रासाउंड करेंगे तो हमें क्या दिखेगा अंदर, सोचो, कुछ भी नहीं, ऑब्वियसली कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि सब कुछ तो ऑलरेडी एक्सपेल आउट हो चुका है. सो ऑन डायग्नोसिस व्हेन यू सी अल्ट्रासाउंड, तो अल्ट्रासाउंड में क्या दिखेगा, एम्प्टी यूट्रस. ओके. और अगर ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, इस केस में हम ट्रीटमेंट में सिर्फ पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देंगे, ताकि कोई फर्दर इन्फेक्शन वगैरह का अगर कुछ रह गया हो तो उससे कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो, तो हम क्या देंगे उसको, एंटीबायोटिक्स. ओके. और हम पेशेंट को बोलेंगे कि बस आप फॉलोअप के लिए आते रहे, और बस दिस इज़ ऑल अबाउट द कंप्लीट अबॉर्शन. Guys, I hope you like my video, so please subscribe and share my channel. It's a like request to you, and also follow my Instagram page, Med Booster, and you can follow me on Instagram on my personal account, that is Yatanjeet Kaur. So please guys, keep supporting. I hope you like my video. Thanks a lot.